Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of Elements of Electronics having a subject code 22213. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 3, Transistor, and today's topic of discussion is Transistor configuration, in which we will going to study about the common emitter configuration. The course outcome for this course as use BJT and FET in different electronic circuits. By studying BJT, that is the bipolar junction transistor, and the field effect transistor, we will going to discuss about how to use this BJT and FET in different electronic circuits we will study in this unit. Chart shows CO and PO mapping. Here the CO3 getting mapped with the PO1, PO2, 3, 4, 6 and 7. Here the PO1, 3 and 4 are getting mapped at the highest level, and how it will get it get mapped with these POs we will discuss in the last lecture. And also how this PO getting mapped with the PO2 and the 6 at the moderate level we also discussed in the last lecture. The learning outcomes. After the completion of this topic, students will be able to, it means you will be able to describe CE configuration with neat circuit diagram. उसके बाद में you can able to differentiate CE, CB and CC configuration on the basis of different parameters. In the last lecture, we were studied about CB configuration, that is the common base configuration using NPN transistor. NPN transistor को यूज करके हम लोगों ने CB configuration को लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. उसके बाद में construction and the working principle of CB configuration, that is the how by using the NPN transistor, how that transistor get work in the common base configuration we will discuss in the last lecture. Let's start with the ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन. तो ट्रांजिस्टर्स हैविंग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से आपने ऑलरेडी एक पढ़ा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. Today we are going to discuss about the common emitter configuration, and in next lecture we will discuss about common collector configuration. These are the 3 different types of transistor configuration. Now let's start with the common emitter configuration. देखो आप लोगों ने जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिया था तो आप लोगों का बेस जो है वो ग्राउंड को कनेक्ट था और दोनों चीज को कॉमन था, इनपुट एज वेल एज द आउटपुट. नाउ द नेम एज द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो आप लोगों का इमीटर जो है दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड इट विल be common to the input as well as the output. So let's start with the common emitter configuration. It is called as a common emitter configuration Q because emitter is common or reference to both input and output terminal. मैंने already आप लोगों को बताया कि common emitter है तो emitter it is connected to the ground and it will be common to input as well as the output side. Then emitter is usually the terminal closest to or at a ground potential. मतलब ये ग्राउंड पोटेंशियल को कनेक्ट रहेगा और दोनों टर्मिनल को क्लोज रहेगा. Almost amplified design is using connection of C due to high gain for current and voltage and the high gain for current and voltage. Q due to the high gain for current and voltage. आप लोग एम्पलीफायर में यूज करते हो किसको? कॉमन इमीटर को. एक चीज ध्यान में रखना है कि व्हाई वी आर यूजिंग द कॉमन इमीटर टू डिजाइन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. यू मस्ट हैव टू नो दैट इट इज हैविंग अ हाई गेन current or the and the voltage. That's why we are going to use a common emitter configuration to design the most of the electronic circuits. Two sets of characteristics are necessary to describe the behavior for CE. First of all, input, that is the base terminal, and the output, that is the collector terminal parameters. Then let's start with the diagram. देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कलेक्टर, बेस और इमीटर. जो बेस जो है वो आप लोगों का इनपुट साइड में है और जो कलेक्टर जो है वो दैट इज इन द आउटपुट साइड. बराबर है.
और ये इमीटर जो है वो रहेगा आपका कॉमन, इमीटर जो है वो रहेगा आपका कॉमन। और दिस सर्किट मतलब ये जो सिंबल है दैट इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो मैंने आप लोगों को बताया अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे क्या रहेगा एन, यहाँ पे रहेगा पी और यहाँ पे रहेगा एन। और व्हेन द अभी इसको ध्यान में कैसे रखना है कि दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर और दिस इज अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो मैंने आप लोगों को एक फंडा और भी बताया था कि बी कंसिस्ट ऑफ द एन टाइप ऑफ मटेरियल, बी कंसिस्ट ऑफ n type of material and E consist of p type of material, right? And the current always flows from positive direction towards the negative direction. इसीलिए आप लोगों का जो करंट है फ्रॉम बेस टूवर्ड्स द इमीटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है इन बिटवीन द बेस एंड द इमीटर, इट इज नथिंग बट द VBE, voltage between base and emitter, which is at the input side, which is at the input side. So you have to draw the graph in between the VBE and the base current. इन दोनों के बीच में आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एंड देन वी विल गो फॉर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो वोल्टेज बिटवीन द आउटपुट साइड दैट इज द voltage between collector and the emitter, which is denoted by the VCE. Now अभी डायरेक्शन कैसे देना है, तो आप लोगों का जो करंट है वो करंट फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द निगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द निगेटिव ऐसा फ्लो होने वाला है। तो IB यहाँ से जो करंट है वो आप लोगों का फ्लो होके ये ऐसा ऐसा जाएगा, बराबर है। मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के करंट आप लोगों का कहा जा रहा है टुवर्ड्स द निगेटिव। देन यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव से निगेटिव करंट आ गया है, तो आप लोगों का अगेन करंट मतलब ये जो करंट ये ऐसे होके ऐसे जाएगा। देन ये करंट फ्रॉम इमीटर साइड्स टुवर्ड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द कलेक्टर साइड, टुवर्ड्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स द कलेक्टर साइड। मतलब आप लोगों का जो डायरेक्शन होगा करंट का वो इस प्रकार से होगा। ये सबसे पहला डायरेक्शन होगा आप लोगों का, जिसको अपन बोलेंगे फ्रॉम बेस टू इमीटर, और यहाँ पे वही करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज इन द इन डायरेक्शन, बराबर है। तो आप लोगों का करंट जो है वो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, बराबर है। देन यही करंट आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, बराबर है। तो दिस इज अ डायग्राम फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग अ NPN ट्रांजिस्टर। नाउ वही अगर आप लोगों को मैंने एक सिंबल के फॉर्म में मतलब ब्लॉक के फॉर्म में अगर बताई हूँ, तो यहाँ पे NPN N it is nothing but the N type of material, P it is nothing but the P type of material. Here मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि बेस आपका जो होता है वो एकदम लाइटली डोप्ड मटेरियल होता है। उसके बाद में N जो है मतलब इमीटर जो रहता है वो मॉडरेट लेवल पे आप लोगों का डोप्ड होता है। वही आप लोगों का जो कलेक्टर है दैट इज हाईली डोप्ड मटेरियल। मतलब आप लोगों के जो चार्ज मटेरियल जैसे निगेटिव टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे निगेटिव साइन कंसिस्ट करेगा। जहाँ पे आप लोगों का निगेटिव साइन जो है वो ज्यादा तौर पे रहेगा एट द कलेक्टर साइड, वही आपका इमीटर साइड पे वो थोड़ा कम रहेगा। और बेस के साइड पे इट इज कंसिस्ट ऑफ द पी टाइप मटेरियल दैट इज द होल्स। होल्स आर इट इज इन द वेरी स्मॉलेस्ट अमाउंट में आप लोगों के यहाँ पे होल्स प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद में जैसे ही करंट फ्लो होते रहेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। वैसे ही आप लोगों के कलेक्टर के तरफ से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, वैसे ही कलेक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मटेरियल है मतलब निगेटिव चार्ज मटेरियल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव मटेरियल। और जैसे ही एक दूसरे के साथ ये पॉजिटिव एंड निगेटिव गेटिंग कंबाइन, देयर इज अ वन लेयर गेटिंग फॉर्म बिटवीन दिस टू लेयर एट द बेस साइड विच इज कॉल्ड एज द जंक्शन, which is called as a junction। और उसी को आप लोग बोलोगे क्या, डिप्लीशन लेयर, जिसी को बोलेंगे आप डिप्लीशन लेयर। और जैसे ये डिप्लीशन लेयर ज्यादा बढ़ते जाएगी वैसे ही आप लोगों का करंट कम फ्लो होते, और वैसे ही जैसे ही आप लोगों की डिप्लीशन लेयर कम होते जाएगी द NPN ट्रांजिस्टर गेटिंग इन द एक्टिव रीजन। हाँ अभी ये हो गया। तो ये एक्टिव रीजन में क्या होता है, तो एक्टिव रीजन में आप लोगों का ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क एज एन एम्पलीफायर। मतलब जैसे ही एक्टिव रीजन में आप लोगों का आ गया करंट स्टार्ट्स गेटिंग फ्लो, और जैसे ही फ्लो होते रहेगा आप लोगों के वीक सिग्नल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाईली सिग्नल और इट इज वर्किंग एज अ
एम्पलीफाई। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बताया कैसे आप लोगों के पॉजिटिव टर्मिनल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और उसके बाद में कैसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, ये भी आपको डायग्राम में से समझ जाएगा। तो इट इज नथिंग बट द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो अभी प्रॉपर बाइसिंग कैसे होता है सी कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, दोनों को यूज करके अपन ने लिया है, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी दिखाया है और पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी दिखाया है। तो यहाँ पे देखो कैसे होता है, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका एक्चुअल डायग्राम अगर अपन ने प्रैक्टिकली फॉर्म में अगर देखा तो दिस इज एक्चुअल प्रैक्टिकल फॉर्म में डायग्राम है आप लोगों का। वही अगर मैं ब्लॉक को लेके चलती हूँ तो ये डायग्राम रहेगा फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, और वही अगर आप लोग को ट्रांजिस्टर यूज करके लेना है तो दिस इज अ कंप्लीट प्रैक्टिकल सेटअप फॉर द सी कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इमीटर का करंट फ्लो होना फर्स्ट स्टार्ट होगा, बराबर है, क्योंकि दिस इज ए इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और इमीटर इज कॉमन टू बोथ, दैट इज द बेस करंट एज वेल एज द कलेक्टर करंट। सो द यहाँ पे क्या होगा, तो आई एक करंट का इक्वेशन आप लोगों को मिलता है आफ्टर द वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ दैट common emitter configuration, then we will get the here I is equals to IC plus IB. This is a current equation for the C configuration. So this is all about the proper biasing of C configuration. Let's start with the next part, that is the characteristics of common base. Characteristics of common base we already have studied in the last lecture about the characteristics of common base. So here we have to write down here the common emitter. Sorry, गलती से थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को देना पड़ेगा क्या, कॉमन इमीटर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर देखते हैं। हियर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे चाहिए था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, जैसे इसका फेज एंगल जो है 180 डिग्री होता है। वही आप लोगों इसको इनपुट टर्मिनल देते हो तो बेस पे जाएगा, आउटपुट टर्मिनल आपका कलेक्टर पे रहता है। वोल्टेज गेन यहाँ पे मीडियम रहता है, करंट गेन भी मीडियम रहता है। करंट गेन इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टुवर्ड्स द बेस करंट। उसके बाद में पावर गेन यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा पावर गेन यहाँ पे होगा हाई लेवल पे, और इनपुट इम्पीडेंस इट इज एट द मीडियम लेवल व्हाइल द आउटपुट इम्पीडेंस आल्सो एट द मीडियम लेवल। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन इमीटर। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके आप लोगों को सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। देन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अभी this is the input characteristics in between the base current and the voltage between the base and the emitter। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि आप लोग जैसे ही अगर जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो टिल ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट बिकम्स कांस्टेंट, करंट बिकम कांस्टेंट। और जैसे ही यहाँ पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, योर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, योर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो देखो यहाँ पे जैसे आप लोगों का डिप्लीशन लेयर ये हो गया, तो वैसे आप लोगों का करंट फ्लो हो गया, जिसको अपन बोलेंगे क्या, वोल्टेज बिटवीन कॉमन कॉमन सॉरी वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड द इमीटर। तो सबसे पहले आप लोगों का जैसे करंट एट द हाईएस्ट लेवल पहुंचेगा, आप लोगों का वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर क्या रहेगा, 0 रहेगा। वही अगर थोड़ा मॉडरेट रहेगा तो वो थोड़ा बढ़ते जाएगा, उससे अगर कम रहता है मतलब करंट जितना कम फ्लो होगा उतना ज्यादा आपका वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर इट इज एट द हाईएस्ट लेवल, राइट। तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा थेरोटिकल पार्ट यहाँ पे दिया है कि IB that is the base current is microamperes compared to milliampere of collector current। मतलब आप लोगों का बेस करंट जो है वो इट इज इन द माइक्रो एम्पियर विच इज कंपेयर टू द कलेक्टर करंट। उसके बाद में IB will flow when voltage between the base and the emitter is greater than that of the 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for the germanium। मतलब आप लोगों का कट ऑफ वोल्टेज मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर 0.7 से
ज्यादा रहेगा तभी आप लोगों का IB फ्लो होते जाएगा, उससे अगर कम है तो आप लोगों का IB फ्लो नहीं होगा। किसके लिए? फॉर सिलिकॉन मटेरियल, मतलब अगर आप लोगों का ट्रांजिस्टर अगर सिलिकॉन मटेरियल का बना है तो आप लोगों का बेस करंट फ्लो होगा कब? जब वोल्टेज बिटवीन बेस एंड द इमीटर इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 0.7 वोल्ट। वही अगर 0.3 वोल्ट है फॉर जर्मानियम, तब आप लोगों का करंट फ्लो होगा। बिफोर दिस वैल्यू IB इज वेरी स्मॉल, इसके पहले IB का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा और ऐसे भी हो सकते कि IB बिकम्स 0। बेस इमीटर जंक्शन इज इन द फॉरवर्ड बायस। ऑलरेडी आप लोगों ने PN जंक्शन डायोड में और जेनर डायोड में फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है ऑलरेडी पढ़ा है। तो बेस इमीटर जंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? फॉरवर्ड बायस। इंक्रीजिंग द VCE, अगर अपन ने कलेक्टर और इमीटर का वोल्टेज बढ़ा दिया तो आप लोगों का IB ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे अगर करंट कम है तो वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर बिकम्स लो, ठीक है, सॉरी बिकम्स ग्रेटर। तो आप लोगों का यहाँ पे दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द C कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स स्टडी हियर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक? देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि सैचुरेशन रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है और एक्टिव रीजन क्या होता है। कट ऑफ रीजन ऐसा रीजन जहां से आप लोगों का करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। सैचुरेशन रीजन मतलब आप लोगों का करंट बढ़ रहा है, और एक्टिव रीजन इज द पर्टिकुलर एक्टिव रीजन में आप लोगों का ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं VCE की, VCE अगर लेस देन सैचुरेशन VCE, सैचुरेटेड वोल्टेज से अगर कम है तो आप लोगों का जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होगा लीनियरली, मतलब एक साथ साथ आप लोगों का कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होते जाएगा और वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर भी इंक्रीज होते जाएगा। अगर आप लोगों का वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सैचुरेटेड वोल्टेज, तो आप लोगों का IC जो है मतलब करंट जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन द करंट वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड द इमीटर, और आप लोगों को क्या मिलेगा? कांस्टेंट IC। अगर आप लोगों का IB मतलब बेस करंट का वैल्यू माइक्रो एम्पियर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू IC मिली एम्पियर, मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों का IP इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द IC। तो थोड़ा सा इंक्रीज अगर IB में होता है तो उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज होगा क्या? कलेक्टर करंट। Here the IB becomes 0 ampere and the ICO noticing the value when IC is equals to 0, मतलब voltage between collector and emitter, sorry current between the collector and emitter it is the 0 occur when जब IC का current 0 रहेगा। There is a still some value of current flow, तभी भी आप लोगों का थोड़ा सा करंट फ्लो होने वाला है। तो दिस इज द, देखो यहाँ पे देखेगा आप लोगों को these are all the values of IB, here the IC and the VCE। आप लोगों का ग्राफ अगर VCE और IC है तो उसके अपोजिट वाला करंट जो है वो फ्लो होते जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, कांस्टेंट होते जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ बिटवीन द IC एंड द VCE फॉर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखो यहाँ पे अभी एक्टिव रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन में क्या होता है और कट ऑफ में क्या होता है। तो एक्टिव रीजन में आप लोगों का बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, वही अगर आप लोगों का कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होता है, और इट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द वोल्टेज करंट एंड द पावर एम्प्लीफिकेशन। लेट्स गेट फॉर द सैचुरेशन रीजन। यहाँ पे आप लोगों का बेस इमीटर और द कलेक्टर बेस बोथ आर द रीजन इन फॉरवर्ड बायस, एंड उसके कारण आप लोगों का बेस करंट और कलेक्टर करंट वो बहुत ज्यादा होगा, और आप लोगों की वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। दिस इज अ सुटेबल रीजन जहां पे आप लोगों का ट्रांजिस्टर एज एन स्विच वर्क करेगा। और द मतलब ये क्या है, दिस रीजन अवॉइड्स व्हेन द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। जब भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के जैसे वर्क करने लगेगा तब आप लोगों को सैचुरेशन रीजन को निग्लेक्ट करना है। देन अबाउट द कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में क्या होता है, देखो बी इन द बोथ आर इन द रिवर्स बायस, IB is equals to 0, IC is not 0 during this condition, और आप लोगों का IC it is work as a ICO where when this current flows in between the base and the emitter it is in the reverse bias. This is all about the active region, saturation region and the cut off region.
उसके बाद में बीटा, जैसे आपने वहां पे अल्फा देखा था, दैट इज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बीटा, दैट इज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. तो देखो, बीटा रिप्रेजेंट्स हियर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. बीटा रिप्रेजेंट्स हियर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर of a transistor, where beta is sometimes referred to as a HFE, a term used in transistor modeling calculation. आप लोग ट्रांजिस्टर को थोड़ा मॉडर्न पैटर्न में लिखते हो तो उसके कैलकुलेशन के लिए एक हाइब्रिड पैरामीटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द HFE. उसको समटाइम्स आप लोग उस हाइब्रिड पैरामीटर को बीटा भी बोल सकते हो. बीटा इट इज नथिंग बट अ हाइब्रिड पैरामीटर फॉर द ट्रांजिस्टर. अभी डीसी मोड में अगर आप लोगों का ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर रहेगा, इट इज द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट. whenever the beta working in the DC mode, your ratio beta DC, it is calculated as the ratio between the collector current and the base current. when we'll apply here in the AC mode, तो आप लोगों का बीटा जो रहेगा, rate of change of collector current in and rate of change of base current. It is the ratio of rate of change of collector current and the ratio and the rate of change of base current when the VCE, that is the voltage between collector and emitter, it is a constant. So this is all about the beta. Then we will going to discuss about the relation between the alpha and the beta. This is the most important part. The question will ask, give the relation between or state the relation between the alpha and beta. You must have to calculate the value for the alpha as well as the beta in the case of alpha and beta. देखो केस 1, सबसे पहले कि आप लोगों का करंट इक्वेशन क्या है. हियर द करंट इक्वेशन इट इज नथिंग बट द IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB. बराबर है यहाँ पे IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB. अभी आप लोगों को इक्वेशन पता है IC इज इक्वल्स टू बीटा इंटू IB. IC इज इक्वल्स टू बीटा इंटू IB. तो क्यों ऐसा, क्योंकि बीटा इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ IC अपॉन IB. वही अगर मैंने IC को कैलकुलेट करने के लिए बीटा से अगर IB को मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट IC इज इक्वल्स टू बीटा इंटू IB. इसी वैल्यू को मुझे इस वैल्यू में पुट करना है तो आई विल गेट IE इज इक्वल्स टू बीटा. मतलब इस वैल्यू को पहले पुट कर लो आप लोग. पुट करने के बाद आप लोगों को ये मिलेगा कि देखो सबसे पहले कि IE इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन, IC की. तो IC की वैल्यू आपके पास बीटा IB प्लस बीटा IB प्लस IB. अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, IB को अगर अपन कॉमन निकालते हैं तो IB को कॉमन निकालने में विल गेट द इक्वेशन IE इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 इंटू IB. Here in the case 2, as we know that alpha is the ratio of, alpha क्या है, alpha it is the ratio of collector current and the emitter current. Here we will get the IE and the IB की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी क्योंकि all of you know about the alpha is equals to collector current and upon IE, that is the emitter current, and the beta is equals to ratio of collector current and the base current, जिसमें अपन यहाँ पे अल्फा के थ्रू आप लोग IE का ये निकालो और बीटा के थ्रू अपन निकालेंगे IB की, क्योंकि दिस इक्वेशन रिक्वायर्स द टू वैल्यू, वन इज द IE and the second one is the IB. Now after putting this equation, first of all we will put the value for alpha in this equation and then after we will put the value of beta in this equation. We will get the alpha is equals to beta upon beta plus 1 while the beta is equals to alpha upon 1 minus alpha. So this is the relation between the alpha and the beta. Do practice for it, for this relation you will get the perfect answer how to solve this relation between the alpha and beta. So this lecture summarizes with, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि C configuration using NPN ट्रांजिस्टर, उसके बाद में उसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन कैसा था, डेफिनेशन ऑफ बीटा मतलब बीटा का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला अपन ने AC और DC मोड में पढ़ा. और हियर वी विल आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about common base configuration. Thank you.